Greetings everyone. Welcome back to Medhunam classes. Today we are going to discuss ninth class annual sample paper. We are discussing here section A reading part. There are two passages. First is here. Let us start. Passage 1, the role of media. In today's interconnected world, the media plays a central role in shaping how people think, feel, and act. From newspapers and radio to television and social media platforms, the media has evolved rapidly, influencing every aspect of modern life. Yet, while it informs and connects society, it also raises serious questions about accuracy, bias, and impact. Second paragraph है बेटा. The traditional forms of media, print, radio, and television once served as the primary sources of information. Newspapers offer detailed reporting and encouraged reading habits, while radio and television brought sound and visuals to millions, making news and entertainment more accessible. These forms of media have a certain credibility because information is usually checked and verified before publication or broadcast. They also provide shared experiences. For instance, watching a national event live on television or reading the morning newspaper together fosters a sense of community. Third paragraph है बेटा. However, the rise of digital media has transformed how information is produced and consumed. With smartphones and the internet, people can now access news instantly from anywhere. Social media platforms like X, formerly Twitter, Instagram, and YouTube allow individuals not just to consume content but also to create and share it. This democratization of media has given voice to many who were previously unheard. Local issues can gain global attention, and social campaigns can bring real social change. For instance, online movements have raised awareness about environmental protection and gender equality more effectively than traditional campaigns ever could. Fourth paragraph. Yet, this very freedom has its drawbacks. The speed of digital media often comes at the cost of accuracy and accountability. False information, rumors, and biased reporting can spread faster than verified facts. The competition for attention sometimes leads to sensationalism sensationalism rather than substance. Moreover, overexposure to media, especially social media, can create echo chambers where people only see opinions similar to their own, reducing open minded discussion and critical thinking. On the other hand, media can be a powerful tool for education and empowerment when used wisely. Educational channels, podcasts, and digital libraries provide free learning opportunities. Media literacy programs now teach students to question sources and identify misinformation. As the line between the creator and the consumer blurs, understanding how media works becomes essential. Last paragraph. In conclusion, the media in all its forms remains a double edged sword. It has the potential to inform, inspire, and unite, but also to mislead, divide, and manipulate. The challenge for society is not to reject media, but to engage with it responsibly. Whether print or digital, the true power of media lies in how wisely we choose to
राइट। इस तरीके से आप सभी ने पहले पैराग्राफ पढ़ना है और कोई भी बच्चा ये माइंड नहीं करेगा कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें समझ आया नहीं आया, मुझे मैम इसका मीनिंग नहीं पता। जब आप दोबारा से रीड करेंगे तो आपको धीरे धीरे अंदर अपने आप ही समझ आने लग जाएगा कि पैराग्राफ में क्या बता रखा है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले आपने पैराग्राफ रीड करना है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे। पैसेज 1 क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन है बेटा हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 1। तो जो पैराग्राफ 1 था उसके बेसिस पर हमने आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, द बिगेस्ट शिफ्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कम फ्रॉम। तो आप पैराग्राफ से देखेंगे, इसका आंसर है हमारा द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ मीडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर्स एंड रेडियो टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, हाउ हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चेंज पार्टिसिपेशन इन न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, गिव एन एग्जाम्पल। तो आंसर में होगा, सोशल मीडिया अलाउज इंडिविजुअल्स टू बोथ कंज्यूम एंड क्रिएट शेयर कंटेंट, democratizing the media. For example, online movements for environmental protection have raised awareness more effectively than traditional campaigns. Question number 3, list any 2 advantages of traditional forms of media mentioned in the passage. Passage में जो भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स है, परंपरागत जो भी फॉर्म्स है मीडिया की, उसके 2 फायदे बताए गए हैं। तो वे हमने लिखने हैं। आंसर होगा फर्स्ट, दे हैव क्रेडिबिलिटी बिकॉज इंफॉर्मेशन इज यूजुअली वेरीफाइड बिफोर बीइंग ब्रॉडकास्ट। कहते हैं कि ब्रॉडकास्ट पे यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने से पहले एक बार उसकी क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, वेरीफाई किया जाता है। सेकंड, दे फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंस। और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके एक सेंस बना लेते हैं एक कम्युनिटी की। कम्युनिटी होता है जैसे सामुदायिक एक सेंस उनके अंदर जागृत हो जाती है, ये फ़ायदा है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक सुटेबली विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू द पैसेज, डिजिटल मीडिया कैन क्रिएट। तो डिजिटल मीडिया है कैन क्रिएट, क्या क्रिएट कर सकता है, ए ऑप्शन में फिल करना है। एंड लिमिट, और लिमिट क्या है वो भी ऑप्शन में फिल करेंगे। व्हेन पीपल ओनली सी ओपिनियंस सिमिलर टू देयर ओन, जब लोगों के ओपिनियंस, उनकी राय जो वो सेम हो। तो आंसर है फर्स्ट है, कैन क्रिएट इको चेम्बर्स क्रिएट कर सकता है। एंड लिमिट क्या कर सकता है, ओपन माइंडेड डिस्कशंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। फिफ्थ है, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन फ्रेज विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम पैसेज 2। पैसेज 2 में अंडरलाइन जो वर्ड दिया है जो कि इटैलिक लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसके लिए आपने फ्रेज दिया है। कंटेक्स्ट है, सोशल मीडिया अलाउज ऑर्डिनरी पीपल टू क्रिएट एंड स्प्रेड। तो यहाँ पे जो स्प्रेड वर्ड है उसके लिए ढूंढना है आपने देयर ओन कंटेंट इंस्टेंटली। आंसर है आपका, स्प्रेड होता है फैलाव और ब्रॉडकास्ट होता है बहुत बड़े स्तर पर एक साथ चीज़ फैलाना, एक साथ कोई न्यूज़ फैला देना, तो ब्रॉडकास्ट आएगा। What concern does the writer express about the speed of digital media? डिजिटल मीडिया की जो स्पीड है उसके लिए राइटर का क्या कंसर्न है, राइटर क्या कहता है। स्पीड ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो स्पीड आती है वो एक्यूरेसी होती है जो बिल्कुल सही है, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी के कॉस्ट पर, कीमत पर आती है। अलाउइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स ऑफ स्प्रेड फास्टर देन फैक्ट्स। कहते हैं कि जो गलत न्यूज़ होती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, रूमर्स होते हैं, वो फैक्ट्स की बजाय ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। क्वेश्चन 7 है बेटा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट एजुकेशनल बेनिफिट्स डज मीडिया प्रोवाइड व्हेन यूज्ड वाइजली। पैसेज के अनुसार अगर देखा जाए एजुकेशनल बेनिफिट्स, जो शैक्षिक तौर पर जो लाभ हैं वो मीडिया हमें प्रोवाइड करती है अगर हम उसको अच्छे से वाइजली, बुद्धिमत्तापूर्वक यूज़ करें।
It provides free learning opportunities through educational channels, podcast and digital libraries. ये सभी को पता होगा. 8th, complete the sentence with the correct response. रिस्पॉन्स के साथ द राइटर्स टोन इन द पैसेज राइटर की टोन क्या है. इसका आंसर आएगा ए, एप्रिसिएटिव एंड बैलेंस्ड. एप्रिशिएट करना है प्रशंसा करना, ठीक है. जो राइटर पैसेज में बोल रहा है वो एक सोशल मीडिया की प्रशंसा भी करता है और एक बैलेंस्ड बिहेवियर बनाकर भी रखता है. बेटा जो आपका पैसेज 1 आएगा उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे और आपने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस न के बराबर कह सकते हो आप. मुश्किल से 1 या 2 मिलेगा आपको, अदरवाइज आपने लिखने हैं. तो पैसेज में लिखा हुआ कंटेंट, क्वेश्चन कंटेंट के आसपास की जो भी लाइनें आपको अच्छे से समझ आ रही है आपने पेपर में लिखना ज़रूर है. बिना लिखे कोई भी बच्चा नहीं रहेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज 2, क्योंकि 2 पैसेज आने वाले हैं. तो पैसेज 2 दिया हुआ है ग्रीन रूफ्स. तो एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं. इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट मतलब हाल ही के सालों में, सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बिगन टर्निंग देयर रूफ टॉप्स into vibrant green spaces to fight rising temperatures and pollutions. क्या कह रखा है कि जो शहर है, शहरों में अक्रॉस द वर्ल्ड में जो शहर हैं उनकी जो ऊपर की छत है, सबसे ऊपरी एरिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर क्या करने लग गए हैं अब, रूफ टॉप्स पर वाइब्रेंट ग्रीन स्पेसेस, यानी कि वहाँ पर कुछ न कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटी छोटी कोई भी वेजिटेशन करने लग गए हैं ताकि टेम्परेचर को और पोल्यूशन को कम किया जा सके. नून एज ग्रीन रूफ्स, जाने जाते हैं ग्रीन रूफ के कारण. दीज स्पेशली डिजाइन रूफ टॉप्स आर कवर्ड विद सॉयल, ग्रास एंड प्लांट्स. तो जो सबसे ऊपर वाली छत होती है रूफ टॉप, वो कवर्ड होती है मिट्टी से, ग्रास से और प्लांट से. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2024, जो रिपोर्ट है 2024 के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें बताया गया है ओवर 35% ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन मेजर ग्लोबल सिटीज नाउ इंक्लूड सम फॉर्म्स ऑफ रूफटॉप वेजिटेशन कंपेयर टू जस्ट 8% डिकेड अगो. कहते हैं कि 10 साल पहले केवल 8% ऐसी रूफ टॉप्स मिलती थी, जो कि आजकल नई बिल्डिंग्स में 35% आप रूफ टॉप्स वेजिटेशन के साथ देख पाते हो. द राइज is driven by increasing awareness about climate change. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है एंड द अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल अर्बन सॉल्यूशंस. और एक सस्टेनेबल विकास के लिए ज़रूरी है, अर्जेंट, बहुत ही आवश्यक नीड है ये क्या, प्लांट्स ग्रो करने की. और जगह रही नहीं है, वन ख़त्म होते जा रहे हैं, तो रूफ टॉप्स पर क्यों न थोड़ा बहुत वेजिटेशन किया जा रहा है आजकल. सेकेंड पैराग्राफ है बेटा, ग्रीन रूफ्स ऑफन सेवरल बेनिफिट्स बैक्ड बाय साइंटिफिक डाटा. साइंटिफिक डाटा की देखा जाए तो ग्रीन रूफ छत होती है जो ग्रीन, वो उसके बहुत सारे फायदे हैं. स्टडीज बाय द अर्बन इकोलॉजी सेंटर शोज दैट, अर्बन इकोलॉजी सेंटर की जो स्टडी है वो हमें दिखाती हैं कि बिल्डिंग्स विद ग्रीन रूफ्स कैन स्टे अप टू 5 डिग्री सेल्सियस कूलर ड्यूरिंग समर. कि जिन घरों की छत ग्रीन होती है, ग्रीन का मतलब ग्रीन पेंट नहीं है यहाँ पे, ग्रीन का मतलब है जैसे कि वेजिटेशन किया हुआ है, कुछ उगाया गया है, प्लांट्स हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स लगा दिए गए हैं, उनसे है बेटा. तो कहते हैं कि गर्मियों में 5 डिग्री तक कम टेम्परेचर रहता है. दे कैन ऑल्सो रिड्यूस एयर कंडीशनिंग कॉस्ट बाय 20% टू 25%. AC की कॉस्ट भी 20 से 25% कम हो रही है. एडिशनली 1 स्क्वायर मीटर ऑफ रूफटॉप्स ग्रीनरी कैन absorb अप टू 1.5 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर. और कहते हैं कि एक छत, एक रूफटॉप, एक स्क्वायर रूफटॉप हर साल कम से कम 1.5 kg कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रही है. मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहर सच है जैसे कि सिंगापुर, टोरंटो एंड कोपेनहेगन
have introduced policies making green roofs mandatory for commercial buildings above a certain size. इन शहरों में मैंडेटरी कर दिया उस चीज़ को, बिल्कुल मतलब जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं हैज़ टू हैव टू, करना ही पड़ेगा, तो वही मैंडेटरी कर दिया है कि कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स में जिनका इतना साइज होगा उनके ऊपर ग्रीन रूफटॉप बनेगी ही बनेगी. थर्ड पैराग्राफ है बेटा, दीज रूफ्स आर नॉट ओनली गुड फॉर द एनवायरमेंट बट हैव बिकम एक्साइटिंग स्पेसिस फॉर पीपल. कहते हैं कि ये रूफ्स जो है एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छी नहीं है बल्कि लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है कि उनको एक स्पेस मिलता है नेचर से मिलने का. सम स्कूल्स यूज ग्रीन रूफटॉप्स एज आउटडोर क्लासरूम. कुछ स्कूल्स हैं जो कि आउटडोर क्लासरूम की के लिए ग्रीन रूफटॉप्स बनाते हैं. इन टोक्यो, अगर टोक्यो में देखा जाए, टोक्यो जापान की राजधानी है. ओवर 120 स्कूल्स मेंटेन वेजिटेबल गार्डन्स ऑन रूफटॉप्स. 120 स्कूलों से भी ज़्यादा स्कूलों में रूफ टॉप्स पर वेजिटेबल गार्डन बने हुए हैं. टीचिंग स्टूडेंट्स सस्टेनेबल फार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी. और वहाँ पर बच्चों को फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया जाता है. बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज ऑल्सो रिटर्न टू दीज ग्रीन पॉकेट्स. और ऐसे ग्रीन एरिया में बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज आपको देखने को मिलते हैं, क्रिएटिंग मिनिएचर इकोसिस्टम्स इन द मिडल ऑफ बिजी सिटी. इतने बिजी शहरों में एक छोटा सा इकोलॉजिकल सिस्टम इससे डेवलप हो जाता है. फोर्थ, however, experts warn that green roofs require regular maintenance. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन रूफ अगर बना ली तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होगी तो वहाँ पे वीड सूख जाते हैं. विदाउट प्रॉपर वाटरिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर सपोर्ट दे मे नॉट सर्वाइव हार्श वेदर. क्योंकि अगर प्रॉपर पानी नहीं दिया गया, प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया, तो इतना हार्श वेदर है, जो मौसम है, इतना चिलचिलाती धूप है, वे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. स्टिल एनवायरमेंटलिस्ट्स बिलीव दैट वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ ग्रीन रोफ्स कुड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एयर क्वालिटी. और इतना फैलाव, वाइड स्प्रेड होता है फैलाव, एडोप्शन है उसको लेना, ऑफ ग्रीन रूफ्स. ग्रीन रूफ्स को जो हमने ले लिया है उसमें क्या है, इम्प्रूव, उससे एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है. रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बन हीट. और जो शहरों की जो हीट है, जो फैक्ट्रीज़ की हीट है, शहरों में जो हीट है उसके इफ़ेक्ट को कम करता है. हीट आइलैंड्स इन द फ्यूचर. क्वेश्चन है बेटा, what does the rise from 8% to 35% of building with green roofs suggest? क्या suggest करती हैं? ऑप्शन बी आंसर है, more cities are adopting sustainable buildings practices. समझ आ गया होगा ये आप सभी को. सेकंड है, select the option that is true for the assertion and region given below. assertion क्या है? green roofs help reduce air conditioning cost. yes, ये right है. बी, प्लांट्स ऑन रूफ टॉप्स कीप द बिल्डिंग कूलर. ये भी सही है. तो ऑप्शन ए इज राइट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. स्टेट एनी 2 एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रूफ. ग्रीन रूफ के 2 बेनिफिट बताने हैं. आप क्वेश्चन में से, पैसेज में से देख करके फटाफट बता सकते हैं. दे कीप बिल्डिंग्स अप टू 5 डिग्री कूलर ड्यूरिंग समर. Second, they absorb up to 1.5 kg of carbon dioxide per square meter annually. Pick the option closest in the meaning to adoption. Adoption क्या था? अपना लेना. As used in paragraph 4 में. तो इसके लिए वर्ड दिया गया है acceptance. According to the passage, why are some cities making green roofs mandatory? Mandatory कुछ शहरों में बिल्कुल ग्रीन रूफ को मैंडेटरी कर दिया है. ऐसा क्यों? टू फाइट राइजिंग टेम्परेचर एंड पोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल अर्बन सॉल्यूशंस. बढ़ते टेम्परेचर, बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए. कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन. बिल्डिंग्स विद ग्रीन रूफ्स कैन स्टे अप टू डैश कूलर ड्यूरिंग समर. पढ़ा था हमने 5 डिग्री सेल्सियस. What evidence shows that green roofs can support biodiversity? क्या एविडेंस, क्या प्रूफ है जो दिखाती कि ग्रीन रूफ
बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। तो हमने पढ़ा था बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज रिटर्न टू दीज रूफ टॉप्स। बर्ड्स, बटरफ्लाइज देखने को नहीं मिलती थी, अब इन रूफ टॉप्स पर वो आ चुकी हैं, क्रिएटिंग मिनिएचर इकोसिस्टम, और एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट भी करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। According to the passage, experts warn that green roofs may fail if, आंसर है, they lack regular maintenance, proper watering system और structural support। कहते हैं कि ग्रीन रूफ्स अपने आप से ख़त्म हो जाएंगी या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर उनकी मेंटेनेंस नहीं की गई, प्रॉपर वाटरिंग सिस्टम वहाँ पर नहीं लगाया गया और स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है बेटा, नेम वन सिटी मेंशन्ड इन द पैसेज दैट हैज पॉलिसीज प्रमोटिंग ग्रीन रूफ्स। कोई एक शहर बताओ। यहाँ पर तो बहुत सारे शहर दिए गए थे, सिंगापुर, टोरंटो, कोपेनहेगन, आप किसी एक का नाम ले सकते हैं। ये बेटा आपका सेक्शन ए पार्ट था जिसमें 2 आपके पैसेज आने वाले हैं और दोनों ही आपने करने हैं। 10 मार्क्स के होंगे, राइटिंग पोर्शन होगा। आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को देखना है और पैसेज में से लाइनें जरूर ही लिखनी हैं, कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और सेक्शन बी पार्ट की वीडियो मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, तब तक आप सेक्शन ए करेंगे अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।